Hello everyone, this is Dr. Indu and you are watching Learn with Dr. Indu. Today I am here with the topic micro teaching. This topic micro teaching is very important to know for the teachers as well as the prospective teachers. Students, the micro teaching has enjoyed the status of one of the hot topics in the field of teacher education for the purpose of practice teaching as well as research. With the change in time, many changes have been observed in all the aspects of our life. So, these changes are also observed in our teaching learning process, where the methodology of teaching, ways of learning, and teacher education itself has been changed. So, the use of practical aspect of micro teaching is no more in our teacher education system now. But still, it is enriching our pedagogical subjects of teacher education, as it is a theoretical part of many courses like MEd and BEd till now, and one of the favorite teacher training technique of today's teacher educators. So, we must know about the micro teaching. To start with the topic micro teaching, firstly, we should understand that what is the relationship of teaching and learning. Students, teaching is meant for learning only. It is a harmonious relationship between teacher, student and subject matter that facilitate learning. So, if there is no learning, that means there is no teaching. So, to become an effective teacher, one should have knowledge of certain teaching skills, and these teaching skills can be acquired by training. And micro teaching is that teacher training technique which help the pupil teachers to have training in these teaching skills. Students, micro teaching is a well-known teacher training technique that was evolved by Dr. Allen and his group in 1963. They defined micro teaching as a system of controlled practice that makes it possible to concentrate on specified teaching behavior and to practice teaching under controlled conditions. Allen and Eve defined this micro teaching in 1969 when they coined the micro teaching. But as per our Indian system, the credit of bringing micro teaching in India goes to Dr. B.K. Pasi, after which it was being used for improving the teaching skill of prospective teacher. Even NCERT also introduced micro teaching in the teacher education syllabus. Micro teaching is a scaled down teaching which encounter with the number of students as well as skills. It helps the prospective teachers to teach a single concept while developing new and refining old teaching skills by providing information regarding the strengths and weaknesses of the performance in the form of feedback. आसान शब्दों में अगर हम माइक्रो टीचिंग को समझना चाहें तो हम ये कह सकते हैं कि माइक्रो टीचिंग एक ऐसी टीचर ट्रेनिंग टेक्निक है जिसमें हम प्यूपल टीचर को सीधा बड़ी बड़ी क्लासेस में जाने के बजाय कुछ अल्ट्रेशंस के साथ क्लास में भेजते हैं। जैसे कि एक सिंगल कॉन्सेप्ट लेकर एक छोटा सा कॉन्सेप्ट, छोटा सा कंटेंट मैटर होता है, उसमें एक सिंगल स्किल होती है, एक सिंगल टीचिंग स्किल, एक टाइम पर एक स्किल के ऊपर हम काम करते हैं। और जब उससे एक बच्चा एक सिंगल कॉन्सेप्ट को पढ़ाता है, एक पीपल टीचर एक सिंगल कॉन्सेप्ट को एक स्पेसिफिक टीचिंग स्किल के साथ पढ़ाता है, तो उसमें जो वो परफॉर्म करता है उसमें उसकी परफॉर्मेंस की क्या अच्छाइयाँ हैं और क्या बुराइयाँ हैं, दोनों को एक फीडबैक की फॉर्म में उस बच्चे को बताया जाता है ताकि वो उसके ऊपर काम कर सके। तो व्हाट माइक्रो टीचिंग एक्चुअली इज, इट इज़ अ स्किल ट्रेनिंग टेक्निक। यस, बहुत बार माइक्रो टीचिंग को इस तरीके से कंफ्यूज किया जाता है कि ये एक टीचिंग की मेथोडोलॉजी है, पर नहीं, ये टीचिंग मेथोडोलॉजी नहीं है, ये पढ़ाने का तरीका नहीं है, मगर ये पढ़ाना सिखाने का एक तरीका है। सो इट इज़ अ स्किल ट्रेनिंग टेक्निक, इट इज़ कंट्रोल्ड प्रैक्टिस टीचिंग। कंट्रोल प्रैक्टिस टीचिंग इसलिए क्योंकि इस मेथोडोलॉजी में, इस टेक्निक में हम कुछ चीज़ों के ऊपर अपना कंट्रोल रखते हैं। वो कंट्रोल किन किन चीज़ों पे है? सबसे पहली बात तो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। हेयर वी हैव स्मॉल ग्रुप ऑफ पीयर्स। कहने का मतलब है कि अपने ही जो साथी हैं, अपने ही साथ पढ़ने वाले जो बच्चे हैं, प्यूपल टीचर्स हैं, उन्हीं को एक स्मॉल ग्रुप्स में हम डिवाइड कर लेते हैं। फीडबैक ऑन डिलीवरी,
और हमने क्या कंट्रोल किया हुआ है कि जो भी परफॉर्मेंस बच्चा देता है, प्यूपल टीचर देता है, उसको उसकी फीडबैक ज़रूर दी जाती है एट द एंड ऑफ दैट परफॉर्मेंस। इंस्ट्रक्टर अंडर माइक्रोस्कोप, जो भी प्यूपल टीचर इस मेथोडोलॉजी से स्किल लेने की ट्रेनिंग करता है, उसको एक, जैसे हम कहते हैं कि माइक्रोस्कोप, अंडर द सर्विलेंस ऑफ माइक्रोस्कोप रखा जाता है कि उससे उसकी छोटी से छोटी अच्छाई और बुराई, उसकी परफॉर्मेंस की छोटी से छोटी एक्टिविटी जो है उसको नोट किया जाता है, चाहे वो उसकी पॉजिटिव एस्पेक्ट है या फिर उसका नेगेटिव एस्पेक्ट है। नेक्स्ट, फोकस ऑन वन स्किल ओनली। यहाँ पर भी हम एक कंट्रोल रखते हैं कि एक समय पर हम बच्चे को या प्यूपल टीचर को सिर्फ एक स्किल के ज़रिए पढ़ाने के लिए ही कहते हैं, उसको सभी और देखने की ज़रूरत नहीं है। नॉर्मल क्लास में क्या होता है कि एक बच्चे को क्लास मैनेजमेंट भी देखनी है, ब्लैक बोर्ड भी यूज़ करना है, एक्सप्लेन भी करना है, क्वेश्चन आंसर भी करने हैं, मगर यहाँ पर हम जो प्यूपल टीचर है उसको सिर्फ एक स्किल के ऊपर फोकस करने के लिए कहते हैं। ट्रेन इन एक्सपीरियंस स्टूडेंट टीचर्स फॉर एक्वायरिंग टीचिंग स्किल्स। अगेन फिर से कहा जा रहा है कि ये पढ़ाने का तरीका नहीं है, मगर पढ़ाना सिखाने की एक विधि है, जिसमें हम उन स्टूडेंट टीचर्स को पढ़ाते हैं, उन स्टूडेंट टीचर्स को ट्रेन करते हैं जिनके पास ट्रेनिंग नहीं है, ताकि वो इन स्किल्स को लेकर एक अच्छे टीचर बन सके। इम्प्रूव द स्किल्स ऑफ एक्सपीरियंस टीचर्स। हाँ, टीचर एजुकेशन में हम इसको, जो एक्सपीरियंस टीचर्स हैं जिनके पास ऑलरेडी एक्सपीरियंस है, उनमें भी उनको भी अगर कहीं लगता है कि किसी स्किल की उनमें कमी है, तो वो उसको भी इस तरीके से इम्प्रूव कर सकते हैं। कंपोनेंट्स ऑफ माइक्रो टीचिंग। अब ऑन दी होल अगर हम देखें कि माइक्रो टीचिंग में क्या क्या चीज़ें इन्वॉल्व होती हैं, तो फर्स्ट वन इज़ माइक्रो टीचिंग सिचुएशंस। दीज आर द सिचुएशंस वेयर ऑल द थिंग्स आर अंडर कंट्रोल। सेकेंड वन इज टीचिंग स्किल। To teach, to have training, we have teaching skills. As we already discussed that at one time we focus on one teaching skill, but there are many more teaching skills to learn. We also need a student teacher, or we can say a pupil teacher, who is getting training. Feedback devices. Yes, feedback devices is one of the most important part of this micro teaching. Without feedback devices, or without providing feedback, micro teaching is of no use. Micro teaching laboratory. When the micro teaching was coined by Dr. Allen, at that time he recommended that there should be a laboratory called micro teaching laboratory. So for that it was told that there should be a micro teaching laboratory in which all the things, all the circumstances will be controlled by the instructor, and the performance will be done under those circumstances. But later on, especially in Indian setup, there was no use of micro teaching laboratory. Practically it was not feasible for Indian setup that we have these laboratories. There are three phases of micro teaching. To get training through micro teaching, a pupil teacher has to go through these three phases. First one is knowledge acquisition phase, in which the orientation is done, जिसमें हम स्टूडेंट को ये बताते हैं कि माइक्रो टीचिंग है क्या, उसके एस्पेक्ट्स क्या हैं, उसके कंपोनेंट्स क्या हैं, कैसे बनी, उसकी बैकग्राउंड क्या है, उसके बारे में बताया जाता है। सेकेंड वन इज़ फेज़ 2, स्किल एक्विजिशन फेज़। ये वो प्रैक्टिकल एस्पेक्ट है, ये जो प्रैक्टिकल पोर्शन है जिसमें एक्चुअल में एक जो स्टूडेंट है, स्टूडेंट टीचर जो है, वो प्रैक्टिस करता है उस स्किल की, एक एक स्किल को करके। अगर हमारे पास पांच स्किल्स हमने ली हैं, तो पांचों स्किल्स को एक एक करके वो परफॉर्म करता है और उसमें ट्रेनिंग लेने की कोशिश करता है। एंड द लास्ट वन इज़ ट्रांसफ़र फेज़, जो प्रैक्टिकल एस्पेक्ट में सेकेंड फेज़ में जब एक बच्चा, जब एक प्यूपल टीचर अलग अलग स्किल्स की ट्रेनिंग लेता है, तो तीसरी स्टेज में आकर फेज़ 3 में आके हम क्या करते हैं, उन सारी स्किल्स को क्लब करते हैं और क्लब करके इकट्ठा करके एक टीचिंग बनाते हैं, एक परफॉर्मेंस बनाते हैं। दैट इज़ मेगा लेसन। कहने का मतलब ये है कि जो स्किल हमने एक एक करके सीखी थी, उन सबको जोड़कर जब आप एक रियल टीचिंग के लिए जब हम तैयार करते हैं बच्चे को, दैट इज़ कॉल्ड ट्रांसफ़र फेज़। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फेज़। practical aspect of micro teaching is phase 2, yet
it is of no use if we don't transfer that phase into third one. क्योंकि एक्चुअल में जो हमें टीचिंग करनी है, जो हमें रियल क्लासरूम में जाके टीचिंग करनी है, वो तो हमें मेगा लाइसेंस की तरह करनी है. वहाँ पर जो एक एक स्किल जो है वो काम नहीं आएगी. तो वहाँ पर हमें यूज़ करने के लिए, वहाँ पर हमें टीच करने के लिए सभी जो स्किल्स हैं उनका इकट्ठा करना बहुत ज़रूरी है. तो ट्रांसफ़र फेज़ में हम वो चांस देते हैं बच्चे को कि वहाँ पर वो अपनी जो नॉलेज जो उसने गेन की है, जो स्किल्स उसने ली हैं एक एक करके, उन सबको इकट्ठा करे और सबको मिलाकर एक अच्छी परफॉर्मेंस जो है वो दे. सो द क्रक्स ऑफ माइक्रो टीचिंग लाइज इन 2 एलिमेंट्स. जो भी हमने अभी तक पढ़ा उसके हिसाब से अगर हम देखें तो 2 चीज़ें माइक्रो टीचिंग के अंदर जो मेन हैं, वो फर्स्ट वन इज टीचिंग स्किल्स. दैट इज़ अ सेट ऑफ टीचिंग एक्ट्स or behaviors performed with the intention to facilitate pupils learning. टीचिंग स्किल्स क्या है? सेट ऑफ टीचिंग एक्ट्स, कि ऐसे एक्शंस जो एक टीचर ने करने हैं या फिर एक ऐसा बिहेवियर जो उससे उम्मीद की जाती है कि वो करे ताकि वो बच्चों को लर्निंग करने में, बच्चों को याद करने में, बच्चों को पढ़ाई करने में मदद कर सके. दूसरा इम्पॉर्टेंट एलिमेंट है फीडबैक. That refers to the communication of information about performance to the learner with a view to modify it in the desired directions. फीडबैक जो है वो माइक्रो टीचिंग का एक बहुत ही अच्छा और पॉजिटिव एस्पेक्ट है. यहाँ पर हम जो परफॉर्मेंस है, किसी भी पीपल टीचर की जो परफॉर्मेंस है उसको इवेलुएट नहीं करते. इवेलुएशन जब हम करते हैं तो हम ये कहते हैं कि वो कितनी अच्छी है और कितनी बुरी है. मगर यहाँ पर जो टर्म हमने यूज़ करी है फीडबैक, उसका मतलब ये है कि हम इवेलुएशन की तरह ही हम ये देखते ज़रूर हैं कि उसने जो भी परफॉर्म किया उसमें कौन कौन सी अच्छी चीज़ें थी और कौन कौन सी ऐसी चीज़ें थी जो जिसमें अभी इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है. बट द इंटेंशन ऑफ फीडबैक इज़ always productive, always positive. It is meant to modify the desired behavior in desired directions. यानी कि फीडबैक हम इसलिए देते हैं ताकि, इसलिए हम बच्चे को, पीपल टीचर को उसकी कमियों के बारे में बताते हैं. नेक्स्ट इज प्रोसीजर ऑफ माइक्रो टीचिंग. When NCERT introduced micro teaching in the teacher education syllabus, it was mentioned that micro teaching should be completed in a cycle of 36 minutes. All this time has been divided in these 6 steps. In step 1 there was a micro lesson plan. जैसे कि हम टीचिंग करने से पहले ये कहा जाता है कि एक टीचर को लेसन प्लान करना होता है, तो माइक्रो टीचिंग करने से पहले भी एक लेसन को प्लान करना है. क्योंकि यहाँ पर जो हम लेसन प्रेजेंट करने वाले हैं वो एक स्किल को लेकर है, तो एक स्किल को लेकर ही, एक स्किल को किस तरीके से प्रेजेंट करना है उसके कंपोनेंट्स के ऊपर आधारित हमें एक लेसन प्लान करना होता है. ये जो लेसन प्लान है इसके लिए जो टाइम पीरियड है वो 2 घंटे भी हो सकता है और 1 दिन भी हो सकता है. इट डिपेंड्स अपॉन द कैपेबिलिटी ऑफ द स्टूडेंट टीचर. एट द सेकेंड स्टेप, पीपल टीचर टीच इन द क्लास, यानी यहाँ पर वो परफॉर्म करता है जो भी उसने लेसन प्लान किया था उसको पढ़ाने के लिए जब वो क्लास में जाता है. दैट इज़ कॉल्ड स्टेप 2 टीच. और ये जो टीचिंग है ये 6 मिनट्स के लिए उसको करनी होती है. इसके बाद थर्ड स्टेप में उसको दी जाती है फीडबैक. इट इज़ कॉल्ड फीडबैक सेशन. यहाँ पर ध्यान देने लायक बात ये है कि जितना टाइम एक स्टूडेंट टीचर टीच करता है यानी 6 मिनट, उतना ही टाइम उसको फीडबैक भी प्रोवाइड करवाई जाती है, जिसमें ना सिर्फ उसके नेगेटिव एस्पेक्ट्स यानी जो जहाँ पर उसको इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है उन एस्पेक्ट्स को डिस्कस किया जाता है, बल्कि उन एस्पेक्ट्स को भी डिस्कस किया जाता है जहाँ पर उसकी पॉजिटिविटी है, जहाँ पर उसने बहुत अच्छे से परफॉर्म किया है. ये फीडबैक देने के बाद फोर्थ स्टेप आ जाता है जहाँ पर उसको टाइम दिया जाता है 12 मिनट का टू रीप्लान दैट लेसन बेस्ड ऑन द फीडबैक गिवन इन द लास्ट सेशन. जो पिछले सेशन में उसको फीडबैक दी गई, जो उसको बताया गया कि कौन सा कंपोनेंट उसने अच्छे से यूज़ किया और कौन सा नहीं किया, तो उसके बिहाफ पर उसको अब ये जो लेसन है वो प्लान करना है. कंटेंट तो उसके पास पहले से ही था, तो इसलिए अभी उसको उतना टाइम नहीं लगेगा प्लान करने के लिए, तो 12 मिनट का टाइम दिया जाता है उसको अपनी कमियों को सुधारने के लिए. देन अगेन ही और शी कम टू रीटीच
बट टू अ डिफरेंट ग्रुप। अभी क्योंकि पहले वाला जो ग्रुप था वो ऑलरेडी इसका उसमें टीचिंग हो चुकी है, तो ताकि और फैक्टर्स इंक्लूड ना हो उसमें, इसके लिए ग्रुप को चेंज कर दिया जाता है और स्टूडेंट टीचर को दोबारा से पढ़ाने के लिए कहा जाता है फॉर अगेन 6 मिनट्स। एंड एट द लास्ट स्टेप 6, री-फीडबैक। अगेन फीडबैक इज प्रोवाइडेड with the strengths and weaknesses of the performance for 6 minutes. So all this takes almost 36 minutes to complete. माइक्रो टीचिंग के इस प्रोसेस को हम इस साइकिल के द्वारा भी समझ सकते हैं, जहाँ पे पहले प्लानिंग है, फिर टीचिंग है, टीचिंग के बाद फीडबैक है, उस फीडबैक पे आधारित रीप्लानिंग की जाती है, रीप्लान करने के बाद फिर से टीचिंग की जाती है, जिसको हम रीटीचिंग कहते हैं 6 मिनट के लिए। उसी रीटीचिंग की फिर से रीफीडबैक होती है और उसमें ये देखा जाता है कि जो पहले फीडबैक दी गई थी उसमें अब कितनी इम्प्रूवमेंट हो गई है। अभी ये डिपेंड करता है इंडिविजुअल के ऊपर, पीपल टीचर के ऊपर, कि उसकी कैपेसिटी क्या है, उसका लेवल ऑफ इंटेलिजेंस क्या है, उसका लेवल ऑफ लर्निंग क्या है, कि वो इसी से एक साइकिल में ही अपनी जो स्किल है उसके ऊपर मास्टरी ले लेता है या नहीं। अगर वो नहीं लेता तो रीफीडबैक के बाद फिर से प्लानिंग सेशन, ये जो साइकिल है ये चलता रहता है तब तक। नाउ एज वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड दैट फीडबैक इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ माइक्रो टीचिंग, सो इट शुड बी यूज्ड वेरी फेयरली। व्हाट फीडबैक इज? फीडबैक इज द इंफॉर्मेशन सप्लाइड टू द इंडिविजुअल। वो इन्फॉर्मेशन जो हम पीपल टीचर को देते हैं, जिसमें इंक्लूड क्या क्या है? इंडिविजुअल फीडबैक टू स्टूडेंट टीचर, यानी जो स्टूडेंट टीचर जिसने परफॉर्म किया उसको इंडिविजुअल लेवल पर हम फीडबैक दें हर स्किल के बाद। हर साइकिल हमने किया था कि हर टीचिंग के बाद हम उसको फीडबैक देते हैं। टैलीज एंड रेटिंग ऑफ ऑब्जर्वेशन शेड्यूल, और क्या इन्वॉल्व होता है उसमें? टैलीज। जब एक जो स्टूडेंट टीचर है, पीपल टीचर है, जब वो परफॉर्म कर रहा है तो जो पीछे एक सुपरवाइज़र बैठा है या जो टीचर एजुकेटर बैठा है उसको क्या करना है? उसको टैलीज लगानी है कि कितनी बार इसने जैसे जो कंपोनेंट्स हैं उनको यूज़ किया। ऑब्जर्वेशन शेड्यूल होते हैं माइक्रो टीचिंग के, उन शेड्यूल्स के अंदर टैलीज लगाई जाती हैं और वो टैलीज बाद में उस स्टूडेंट टीचर को दिखाई जाती हैं कि देखो, जैसे आपने कहें कि किसी जब ड्यूरिंग यूजिंग प्रॉबिंग क्वेश्चनिंग हाउ मेनी टाइम्स अ पीपल टीचर यूज्ड सीकिंग फर्दर इंफॉर्मेशन and how many times he used to refocusing। इससे क्या होता है कि जो स्टूडेंट टीचर है उसको ये समझ में आता है कि पूरे कंपोनेंट्स में से कौन सा कंपोनेंट ऐसा है जो उसने बहुत अच्छे से यूज़ किया और जो कम किया, ताकि वो जिसका यूज़ कम किया है उसका यूज़ को बढ़ा सके। इंटरप्रिटेशन अबाउट द परफॉर्मेंस, और उसके बाद हम उसको क्या करते हैं? इंटरप्रेट करते हैं कि उसका मीनिंग क्या है। जो भी हम उसको फीडबैक दे रहे हैं या जो भी उसने परफॉर्म किया उसको इंटरप्रेट किया जाता है। फीडबैक के सोर्सेज ऑफ फीडबैक, कि हम ये फीडबैक दे कैसे सकते हैं। तो फीडबैक जो है इन 5 तरीक़ों से दी जा सकती है। ऑडियो वीडियो फीडबैक। ऑडियो वीडियो फीडबैक में क्या किया जाता है कि जब एक स्टूडेंट टीचर परफॉर्म करता है तो उसको रिकॉर्ड किया जाता है, यानी उसकी वीडियो बनाई जाती है, उसमें ऑडियो भी होती है और वीडियो भी होती है। तो एट द एंड ऑफ द परफॉर्मेंस फीडबैक इज़ प्रोवाइडेड। दिस फीडबैक कैन बी प्रोवाइडेड बाय अ सुपरवाइजर और सेल्फ फीडबैक कैन ऑल्सो बी टेकन। इसमें क्या होता है कि या तो एक जो स्टूडेंट टीचर खुद ही अपनी वीडियो को देखे और ये तय करे कि उसको कहाँ पे अभी इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है, या फिर सुपरवाइज़र वीडियो प्ले करके उसको दिखाए कि ये वाला जो एस्पेक्ट था आपका या ये परफॉर्मेंस थी ये अच्छी थी और यहाँ पर आपको इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है। लाइकवाइज ऑडियो फीडबैक कैन ऑल्सो बी यूज्ड सेम वे सेल्फ और बाय सुपरवाइज़र, कि जिसमें सिर्फ ऑडियो सुनाई दे, आवाज़ सुनाई दे रही है, वीडियो नहीं दिखाई दे रही, उसको दिख नहीं रहा। बहुत सारी स्किल्स ऐसी हैं जिसमें ऑडियो से भी काम चल जाता है, तो हमें वीडियो की ज़रूरत नहीं पड़ती, तो उसके लिए ऑडियो फीडबैक है। थर्ड वन इज़ सुपरवाइजरी फीडबैक, दैट इज़ मोस्ट चीप मोड ऑफ फीडबैक, जहाँ पे हम कह सकते हैं कि एक जो सुपरवाइज़र है, जो टीचर एजुकेटर है, वो क्लास के पीछे बैठ जाता है और टैलीज लगाता रहता है और बच्चे को पीपल टीचर को बताता है एंड में कि उसने कौन कौन से कंपोनेंट हैं जो उनको कवर किया और कौन कौन से रह गए। पीयर फीडबैक,
और अगर तरीका, कई बार क्या होता है कि माइक्रो टीचिंग में हम देखते हैं कि इतने टीचर एजुकेटर नहीं होते कि वो हर एक ग्रुप के साथ बैठ सकें, तो उस केस में पीयर फीडबैक भी ली जा सकती है कि पीयर्स आपस में ही एक दूसरे को, जो क्लासमेट्स हैं वो आपस में एक दूसरे को ऑब्जर्व करें और फीडबैक दें। देन पीपल फीडबैक भी कभी कभी ली जा सकती है। ऑल्दो दिस इज़ द वीकेस्ट मोड ऑफ फीडबैक, क्योंकि पीपल्स जो हैं वो फेयरली फीडबैक कर नहीं सकते। हाउ फीडबैक शुड बी प्रोवाइडेड, देने कैसे चाहिए। The way in which feedback is given and received contribute to the learning process, so it should be provided immediately after the performance. जब जो फीडबैक है वो तभी काम करती है अगर हम उसको उसी टाइम पर दें जब परफॉर्मेंस ख़त्म होती है। वैसे भी ये जो हमारा माइक्रो टीचिंग का साइकिल है उसमें हमने फीडबैक को जस्ट आफ्टर द परफॉर्मेंस ही रखा हुआ है, तो ये एक तरह से उस हमारे प्रोसेस में ही है कि इमीडिएट परफॉर्मेंस हम पीपल टीचर को देते हैं। ऑनेस्ट, डायरेक्ट, कंस्ट्रक्टिव एंड फोकस्ड। जैसे कि हमने कहा कि फीडबैक का जो पर्पस है दैट इज़ ऑलवेज कंस्ट्रक्टिव। हम फीडबैक इसलिए देते हैं ताकि हम बच्चे को, पीपल टीचर को ये बता पाएँ कि उसको कहाँ कहाँ पे इम्प्रूव करना है, तो इसलिए कंस्ट्रक्टिव होती है, फोकस्ड होती है। एक एक माइन्यूट चीज़ जो है, जैसे हमने कहा कि माइक्रोस्कोप के अंडर रखा जाता है पीपल टीचर को, तो उसकी छोटी से छोटी जो बात है, परफॉर्मेंस है, उसको भी नोट किया जाता है। ऑनेस्ट होनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि अगर आपका फेवरेट स्टूडेंट है तो आप उसकी सिर्फ पॉजिटिव चीज़ें ही देखो और नेगेटिव नहीं देखो, इससे तो बल्कि उसका नुकसान हो जाता है। या फिर कोई बच्चा आपको पसंद नहीं है और आप उसकी पॉजिटिव चीज़ें देख ही नहीं रहे और सिर्फ नेगेटिव पर ही फोकस किए जा रहे हो, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। बेस्ड ऑन सम बेसिक पॉइंट्स, जब भी आप फीडबैक करो तो उसको बेसिक पॉइंट्स के ऊपर, कंपोनेंट्स के ऊपर बात होनी चाहिए, इधर उधर की बातें नहीं होनी चाहिए। नेक्स्ट कम्स एडवांटेजेस ऑफ माइक्रो टीचिंग। माइक्रो टीचिंग हमें क्यों पढ़ानी चाहिए, जबकि अब प्रैक्टिकल एस्पेक्ट तो इसका ख़त्म ही हो चुका है, मगर फिर भी माइक्रो टीचिंग क्यों ज़रूरी है। सबसे पहली बात, इट प्रमोट्स एनालिसिस ऑफ बिहेवियर ऑफ द टीचर। हमें एनालिसिस करके बताती है कि एक टीचर का बिहेवियर कैसा है। एन इफ़ेक्टिव वे ऑफ इंस्टिलिंग कॉन्फिडेंस। इस तरीके से जब एक टीचर सीखता है तो रियल क्लासरूम में जाने से पहले ही उसमें एक कॉन्फिडेंस जो है वो बिल्ड हो जाता है, क्योंकि छोटी क्लास है, कम बच्चे हैं, कम कंटेंट पेंटर है, तो उस एटमॉस्फेयर में वो जब छोटे छोटे टुकड़ों में अपनी चीज़ों को करता है, स्किल्स को सीखता है, तो उसमें कॉन्फिडेंस बिल्ड हो जाता है कि वो बड़ी क्लास में भी जाने के लायक हो जाता है। कैन बी डन इन सिमुलेटेड कंडीशंस। जैसे हमने कहा कि पीयर्स, वैसे तो इसके लिए हमने कहा कि हमें बच्चे चाहिए, स्कूल के बच्चे चाहिए, मगर सिमुलेटेड कंडीशंस में क्या करते हैं, सेम ग्रुप के जो बच्चे हैं, यानी बीएड में अगर हम माइक्रो टीचिंग करा रहे हैं तो बीएड के ही स्टूडेंट जो हैं खुद ही टीचर बनते हैं और खुद ही प्यूपल्स भी बन जाते हैं, स्टूडेंट्स भी बन जाते हैं, तो उसको हम सिमुलेटेड कंडीशंस कहते हैं। उसमें भी हम माइक्रो टीचिंग को करवा सकते हैं। लेस नंबर ऑफ स्टूडेंट्स एंड ड्यूरेशन ऑफ टीचिंग। ये अच्छाई है इसकी कि इसमें नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कम होता है, टाइम भी कम होता है, तो एक जो पीपल टीचर है उसको क्लास को कंट्रोल करना इजी हो जाता है। नो प्रॉब्लम ऑफ इनडिसिप्लिन। जब बच्चे 6-7 हैं तो उनको वहाँ पर इनडिसिप्लिन जो क्रिएट नहीं होता। प्रोविज़न ऑफ इमीडिएट फीडबैक। लगभग हर टीचिंग के बाद फीडबैक मिलती है तो इम्प्रूवमेंट के चांसेस बहुत बढ़ जाते हैं। ओनली वन टीचिंग स्किल इज़ कंसिडर्ड एट अ टाइम। देयर इज़ अ फैसिलिटी ऑफ रीप्लानिंग, रीटीचिंग एंड रीवैल्यूएशन। हर एक स्किल को अकेले को टाइम मिलता है और यहाँ पर रीप्लानिंग, रीटीचिंग और रीवैल्यूएशन के लिए भी टाइम है, तो इम्प्रूवमेंट के चांसेस बहुत बढ़ जाते हैं। प्रोवाइड्स ओकेजन्स ऑफ कंपेयरिंग 2 और मोर टीचिंग बिहेवियर्स। जहाँ पर क्या होता है कि क्योंकि पहले टीच, देन फीडबैक, देन रीटीच, देन फीडबैक, तो हम क्या करते हैं, इसमें हमें ऐसा मौका मिलता है कि जो परफॉर्मर है उसको ये पता चले कि उसने 2 परफॉर्मेंसेस जो दी थी उनमें कितना अंतर था। नाउ वन टिप फ्रॉम माय साइड दैट टू बी अ गुड टीचर ट्राई टू बी अ गुड लर्नर। प्यूपल टीचर्स के लिए ख़ास तौर पे ये बात है कि वो अच्छे टीचर तभी बन पाएंगे जब वो अच्छे लर्नर होंगे। तो पहले उनको अच्छा लर्नर बनना है। लर्निंग कभी रुकती नहीं है, तो हमेशा लर्न करना है। जैसे माइक्रो टीचिंग स्किल्स को लर्न करना है। और अगर आप पढ़ाने के दौरान भी अगर आपको लगे कि आपकी किसी स्किल के ऊपर अभी आपकी पकड़ नहीं है, तो आप उसको प्रैक्टिस कर सकते हैं। Here are some references which I used
in this presentation. So thank you all of you for listening.